हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए पोटेंशियोमीटर experiment, two cells connected in series get balanced at 9 centimeter length on the wire. Now, connections of terminals of cell of lower EMF are reversed. Then the balancing length is at 3 centimeter. The ratio of EMFs, larger ratio, smaller of two cells will be 3:2, 2:1, 3:1 and 4:1. Question number 2. The length of a potentiometer wire is 10 meter. The distance between the null points on the wire, its wire corresponding of two cells comes out at 60 centimeter. If the difference of EMFs of the cells is 0.4 volt, then the potential gradient on the potentiometer wire will be 0.5 volt per meter, 0.67 volt per meter, 2.5 volt per meter, 0 volt per meter. Question number 3, a meter bridge with two resistances in two gaps has a balancing point at 40 centimeter. If the resistance 10 ohm is connected in series with the smaller resistor, the balance point shifts by 20 centimeter. The larger resistance is 8 ohm, 40 ohm, 60 ohm, 12 ohm. Question number 4, for a cell of EMF 2 volt, a balance point is obtained for 50 centimeter potentiometer wire. If the cell is shunted in parallel by a 2 ohm resistor and a balance point is obtained across 40 centimeter of the wire, then internal resistance of the cell is 0.25 ohm, 0.5 ohm, 0.8 ohm, 1.0 ohm. Solution. Question number 1. In a potentiometer wire experiment, two cells connected in series get balanced at 9 centimeter length on the wire. Now, the connections of the terminals of the cell of lower EMF are reversed. Then the balancing length is obtained at 3 centimeter. The ratio of EMFs, larger ratio, smaller, of two cells will be 3:2, 2:1, 3:1 and 4:1. एक पोटेंशियोमीटर वायर AB, इसको एक बैटरी से जोड़कर, बैटरी और रेजिस्टेंस से जोड़कर इसमें इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया जाता है। Suppose potential of this battery is V, this is R. Potential gradient across AB is K volt per centimeter. दो बैटरी जिनकी पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में है से कनेक्ट की जाती हैं। सपोज दिस इज E1, दिस इज E2. इनको थ्रू गैल्वेनोमीटर की से अटैच कर देते हैं और इनका बैलेंस पॉइंट बैटरीज का है वो C पॉइंट पर आता है। सपोज AC इज
9 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस across AC is equal to K into 9K। और ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, क्योंकि इनकी पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों के सम के इक्वल। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 9K, इक्वेशन नंबर 1। अब जो स्मॉलर पोलैरिटी की बैटरी है, सपोज दिस इज स्मॉलर पोलर बैटरी, इसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए जाते हैं, रिवर्स कर दिए जाते हैं E2। अब जो बैलेंस पॉइंट है वो चेंज हो जाता है और वो आ जाता है एट पॉइंट C1। दिस इज C1 और AC1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस across AC1 3 into K is equal to 3K, और ये 3K will be equal E1 minus E2 is equal to 3K। इक्वेशन नंबर 2। add इक्वेशन 1 and 2, तो 2E1 is equal to 12K और E1 is equal to 12K by 2 is equal to 6K। subtract equation 2 from equation 1, टू E2 is equal to 6K और E2 is equal to 6K by 2 3K। तो इस रेशो E1 by E2 6K by 3K 2 by 1, तो E1 रेशो E2 is equal to 2 रेशो। जो उनकी लार्जर टू स्मॉलर E1 और E2 का जो रेशो होगी वो 2:1। दिस B इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वाइज 10 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द नल पॉइंट्स ऑन इट्स वायर करस्पॉन्डिंग of two cells comes out to 60 centimeter. If the difference of EMFs of cells is 0.4 volt, then the potential gradient on the potentiometer wire is 0.5 volt per meter, 0.67 voltmeter, 2.5 voltmeter, 0.0 volt per meter। एक पोटेंशियोमीटर वायर इसकी लेंथ 10 मीटर AB, इसके अक्रॉस एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया गया। सपोज जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज
potential gradient V वोल्ट पर मीटर या के वोल्ट पर मीटर, इससे कन्फ्यूजन होगा, के वोल्ट पर मीटर। आओ एक बैटरी को हमने, जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, कनेक्ट किया थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका सपोज बैलेंस पॉइंट इज एट AC, दिस इज एप्सिलॉन 1। तो एप्सिलॉन 1 पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल अक्रॉस AC वो होगा K इंटू AC वोल्ट। तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू K इंटू AC। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस बैटरी को चेंज कर दिया है, यहाँ पे दूसरी बैटरी अटैच कर दी है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2। अब जो पॉइंट आता है, सपोज जो बैलेंस पॉइंट है दैट इज एट C1। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 2 इज K AC 1। इक्वेशन नंबर 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू K AC माइनस K AC 1 और K AC माइनस AC 1। The epsilon 1 minus epsilon 2 is given at 4.4 volt, 0.4 volt K AC1 एंड AC2, इसका डिफरेंस जो है वो दिया है 60 सेंटीमीटर या और 0.60 मीटर। तो AC1 माइनस AC1 इज 0.60 मीटर। तो K इज 0.4 डिवाइड बाय 0.60 और 4/6 और 2/3 इज इक्वल टू 0.67 वोल्ट पर मीटर। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.67 वोल्ट पर मीटर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a meter bridge with two resistors in two gaps has a balancing point at 40 centimeter. If the resistance 10 ohm is connected in series with the smaller resistor, the balance point shifts by 20 centimeter. The larger resistance is 8 ohm, 40 ohm, 60 ohm and 12 ohm। एक ब्रिज, मीटर ब्रिज, एक वायर जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर AB।
यहाँ पर दो गैप्स हैं, इनमें रजिस्टर्स R and S। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, तो बैलेंस पॉइंट इनिशियली इज एट 40 सेंटीमीटर। तो दिस इज C, तो AC इज 40 सेंटीमीटर और BC इज 60 सेंटीमीटर। सपोज जो रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू R ओम पर सेंटीमीटर। तो AC में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, इसकी वैल्यू होगी दिस रेजिस्टेंस, जो यहाँ से AC तक 40R एंड BC का रेजिस्टेंस होगा 60R। तो फॉर बैलेंस Wheatstone bridge, R by S is equal to 40R by 60 R. It means R is smaller than S, or 2 by 3. R is equal to 2 by 3 S. Equation number 1. Now if a 10 ohm resistor is connected in series with the smaller resistor, अगर हम 10 ओम का रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में ऐड कर दें स्मॉलर रेजिस्टर के, टेन ओम, तो दिस रेजिस्टेंस बिकम R1 एंड R1 की वैल्यू है R प्लस 10 ओम। ये शिफ्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर। जिस तरफ का हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उस तरफ की लेंथ जो है अधिक होगी। इट मीन्स कि ये शिफ्ट हो जाता है पॉइंट हमारा बैलेंस पॉइंट टुवर्ड्स B। जो नया पॉइंट है वो हमारा यहाँ से शिफ्ट हो जाता है C डैश पर या C1 पर। अब 20 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो दिस इज 60 सेंटीमीटर, और ये जो है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 60R और इधर का हो जाएगा 40R। इन बैलेंस Wheatstone bridge, R1 by S is equal to 60R by 40R और 3/2। R1 की वैल्यू है R प्लस 10 बाई S इज इक्वल टू 3/2 और R प्लस 10 इज इक्वल टू 3/2 S।
इक्वेशन नंबर 1 है, उससे r की वैल्यू है 2/3s, तो वैल्यू पुट कर दें 2/3s प्लस 10 इज इक्वल टू 3/2s, और 10 इज इक्वल टू 3/2s माइनस 2/3s। 6 एलसीएम 9 माइनस 4s 5/6s। तो s की वैल्यू हो जाती है 10 इंटू 6/5 12 ओम। तो जो लार्जर रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12 ओम। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, for a cell of EMF 2 volt, a balance point is obtained for 50 centimeter of potentiometer wire. If the cell is shunted in parallel by a 2 ohm resistor and balance point is obtained across 40 centimeter of the wire, the internal resistance of the cell is 0.25 ohm, 0.5 ohm, 0.8 ohm and 1 ohm. एक पोटेंशियोमीटर वायर, इसको एक बैटरी से और रेजिस्टेंस से अटैच करते हुए इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया गया। ए बी, सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट के वोल्ट पर सेंटीमीटर से एक बैटरी सेल जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर, अटैच करते हुए इस पर इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू नल पॉइंट is at C और AC is 50 सेंटीमीटर। AC is equal to 50 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में नो कोई भी करंट इस सेल से पास ऑन नहीं होती है। इट मीन्स जो एप्सिलॉन ईएमएफ होगा, ईएमएफ की वैल्यू होगी ईएमएफ, वो होगा इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप across AC. This is K into 50 is equal to 50K. तो एप्सिलॉन की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस सेल के पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टर से इसको शंटेड कर दिया गया है। टू ओम। अब ये पॉइंट C की बजाय चेंज हो जाता है दिस इज एट पॉइंट C1, इसको हटा दें और AC1
is 40 centimeter. AC1 is equal to 40 centimeter. तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC1 is equal to 40 into K is equal to 40K. इस कंडीशन में जो इस सेल से करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, सपोज दिस इज I, और ये पॉइंट D E, potential difference across DE is equal to potential difference across AC1. तो एप्सिलॉन माइनस IR is equal to 40K, इक्वेशन नंबर 2। और जो पोटेंशियल ड्रॉप across 2 ohm resistor is equal to 2 into I और ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस across AC1 और across DE is equal to 40K. 2I is equal to 40K. I is equal to 40K by 2 is equal to 20K. अब जो I की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 में I और एप्सिलॉन की वैल्यू हम इक्वेशन 1 एंड 3 से पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 है एप्सिलॉन 1 IR इज इक्वल टू 40K और I की वैल्यू है 20K और एप्सिलॉन की वैल्यू है 50K। तो 50K माइनस 20K इंटू R K इंटू R 20K इंटू R इज इक्वल टू 40K और 2K इंटू R इज इक्वल टू 50K माइनस 40K इज इक्वल टू 10K और R इज इक्वल टू 10K बाई 20K इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी 0.5 ओम। B is correct option.